Namaskaram everyone, good afternoon. Are we live yet? Hello Nidhi. Hi Divyani. Hi Astha. Hello Rachayita. Good afternoon. We are live. I can't see it at my end yet. Hi Kashish, Anchika, Kriti, Sakib, Medha, Ram, Disha. Good afternoon, good afternoon. How are you guys doing? Hi Ishika, Sonia, Pavan, Samiksha, Arushi. कैसी कट रही है? हाय अल्ताफ, गुड आफ्टरनून अर्शिका. हेलो उज्जवल, विदिशा, शाम्भवी. Okay, so namaskaram once again and welcome back to Eclectic Reading Series. It's been a long time. Today we intend to do an article which is unique and I hope you will learn a thing or two. I also have a couple of questions for you at the end, so stay tuned till the video gets over. And if you like it, if you learn something from it, share it with your friends and press the like button. I'm fine, thank you for asking. Hi Suya, Vaishnavi, Priyanka, Krati. Okay, let's begin. Before we begin, a few announcements very quickly. There is a flat 20% going on all CAT subscriptions, and we are also starting with the Ignite batch for MBA. And we are giving away a 12-month subscription for $24,000 and a 24-month subscription for $32,000. If you check the market prices, these are pretty competitive and this is a good time to start. It's already a little late, I would say, so if you've not started yet, now is the time that you start it. The CAT Prodigy Scholarship test was held yesterday and the next test will happen on the 11th of June at 3 p.m. wherein you are getting rewards and scholarships worth rupees 1 crore. You have a chance of getting up to 100% scholarship. You have full mentorship access at the Unacademy offline center, especially if you are a top 100 ranker, one among the top 100 ranker. You have a personalized test report and of course you get to see your All India rank. We would like to congratulate our toppers and converts from IIMs, especially the top IIMs, the Blackie ones. So we have 54 plus learners who are going to IIM Blackie and 30 plus learners who are going to other top MBA colleges. So we would like to congratulate all of you. This is a new batch which has started on May 11th, which is Ignite batch. These are the USPs of the batch. You can check that out. I am also part of this batch. In June, I am going to repeat grammar for students who are new. And we are also going to do RC genres, better known as the popcorn course, very popular on Unacademy. So we are going to do these two courses in the month of June. And we are also going to practice some CR. So this is the agenda for June. So if you've not joined us yet, now is the time that you do it. Welcome Sanjana. Oh, congratulations for your admission to IIM Raipur. A big congratulations to you. These are the benefits of Plus and Iconic subscription. You can check them out. Let's begin with the article. I hope you've heard about Confucius. If not, then I will guide you a little about who he was in the RC genres course when we do the philosophers. But to begin with, he was a Chinese philosopher. So the author says that when I first read Confucius, I was disappointed. He seemed like a stick in the mud, obsessed with enforcing the status quo. तो जब कन्फ्यूशियस को पहली बार ऑथर ने पढ़ा तो वो डिसअपॉइंट हुआ और उसको लगा कि यार ये बहुत ही ऑब्सेस्ड आदमी है स्टेटस को मेंटेन करने के साथ कि जो जैसा है वो वैसा ही रहे, उसको बोलते हैं स्टेटस को. एंड इज़ अ वेरी स्टिक इन द मड, यू नो, ही इज़ वेरी ऑब्सेस्ड, ही इज़ नॉट रेडी टू make any changes, he is not very flexible. As for music, he grumbled to his disciples, listen only to Shao and Wu, prohibit the tunes of Zeng. तो कन्फ्यूशियस अपने डिसाइपल्स को बोलता था, अपने स्टूडेंट्स को बोलता था कि जब म्यूज़िक को सुनना हो तो शाओ को सुनो और वू को सुनो और जेंग को मत सुनो. तो वो काफ़ी फ्लेक्सिबल आप नहीं था, काफ़ी इनफ्लेक्सिबल था. दिस वॉज द ग्रेट सेज ऑफ एंशिएंट चाइना हु वॉन्डर्ड द कंट्री लेक्चरिंग डिसाइपल्स एंड रूलर्स ऑन हाउ टू लिव. तो ऑथर पिस्ड ऑफ है कि यार ये इतना महान संत है जो कि पूरा चाइना घूमा, जो कि राजाओं से लेकर नॉर्मल स्टूडेंट्स तक सबको लेक्चर देता था कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए. तो ऑथर कहता है शायद 2500 साल पहले हिज अप्रोच मे बी वर्कड, बट फॉर मी इन द 21st सेंचुरी आई प्रेफर्ड लिविंग फ्रीली लाइक द आइकोनोक्लास्टिक दाओइस्ट सेजेस हु मॉक्ड कन्फ्यूशियस. तो कहता है अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं तो दाओइस्ट के संतों जैसा रहना पसंद करता हूँ जो आइकोनोक्लास्टिक थे. आइकोनोक्लास्टिक इज
अ पर्सन हु अटैक्स चेरिस्ड बिलीव्स। तो वो कन्फ्यूशियस की हंसी उड़ाते थे, तो कहता मैं तो उनके जैसा हूँ, मैं आइकनोक्लास्टिक हूँ, मैं फ्रीली जीना पसंद करता हूँ, मैं ऑर्थोडॉक्स नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि इसको सुनना चाहिए और उसको सुनना नहीं चाहिए। सेंट्रल टू कन्फ्यूशियस टीचिंग्स वाज सबमिशन टू ली। ये चाइनीज स्क्रिप्ट में लिखा है ली, टिपिकली ट्रांसलेटेड एज रिचुअल। तो सेंट्रल बात कन्फ्यूशियस की टीचिंग्स की ये है कि आप खुद को सबमिट कर दीजिए ली के आगे, और ली का मतलब था रिचुअल, तो आप अपने आप को रिचुअल के आगे, प्रथा के आगे सबमिट कर दीजिए। आई रोट इट ऑफ एज मोर स्टेल ट्रेडिशनलिज्म। तो ऑथर ने इस बात को राइट ऑफ कर दिया, इस बात को दरकिनार कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, ये कह के कि ये तो स्टेल यानी बासी ट्रेडिशनलिज्म यानी ऑर्थोडॉक्सी है। But then, while preparing a course on classical Chinese thought, I reread the foundational collection of Confucius' teachings known as the Analects. कहता है लेकिन फिर मैंने जब तैयारी करी, एक मैं कोर्स तैयार करा था क्लासिकल चाइनीज़ थॉट पे, तो मैंने रीड करा कन्फ्यूशियस की टीचिंग्स को, और कन्फ्यूशियस की टीचिंग्स को हम कहते हैं एनालेक्ट्स। तो जब एनालिटिक्स ऑथर ने पढ़े तब ऑथर चेंज हुआ। वो कहता है इट वॉज अ रेविलेशन, मेरे लिए ये रिवीलिंग था, मेरे लिए ये रेविलेशन था, कुछ नया था। चेरी पिक्ड पैसेजेस सच एज द वन अबाउट म्यूजिक वर डीपली मिसलीडिंग। देखिए, जब भी आप किसी चीज़ को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं या समझते हैं तो वो मिसलीडिंग ही रहती है। अगर आप किसी भी रिलीजियस बुक का, होली बुक का, एपिक का, चैप्टर का, एक्सरसाइज का एक पॉइंट उठाकर पढ़ लेते हैं या उसको हाईलाइट करते हैं, आप उसे चेरी पिक करते हैं, तो वो मिसलीडिंग होता ही है। तो ये जो बात थी म्यूज़िक वाली जिससे ऑथर पिस्ड ऑफ था, ये चेरी पिक थी और इसलिए ये मिसलीडिंग थी। ली वॉजंट अबाउट फास्टिडियसली ओबेइंग फस्टी ओल्ड रूल्स। तो ली यानी सबमिशन टू रिचुअल का मतलब ये नहीं था कि आप फास्टिडियसली यानी बिना किसी गलती के बहुत ध्यान से फस्टी ओल्ड रूल्स, पुराने ओल्ड रूल्स के आगे झुक जाएं और उनको ओबे करते रहें। दिस वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिचुअल। ये अलग तरीके की प्रथा की बात करता है। माई डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड हैड मिसल्ड मी। तो हमको लगता है कि यार रिचुअल को सबमिट करने को कह रहा है, मतलब प्रथा के आगे झुकने को कह रहा है, यानी कर्मकांड करने को कह रहा है, यानी ऑर्थोडॉक्स है, यानी ट्रेडिशनल है। तो हम सब समझते हैं कि रिचुअल का मतलब ये, और इसीलिए हम मिसलेड हो जाते हैं। तो ये बोलता है कि क्योंकि मैंने वो शब्द को गलत समझा, इसीलिए मेरी जो डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग थी रिचुअल की, उसने मुझे मिसलीड किया। कन्फ्यूशियस ने जो सिखाया है वो था लाइफ एज रिचुअल, जीवन ही प्रथा है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एवरीडे एक्शंस इनटू सेक्रेड एक्टिविटी। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट बाय सबमिशन टू रिचुअल, कन्फ्यूशियस इज नॉट सेइंग कि जो चला आ रहा है उसे चलते रहने दो। वो बोल रहा है कि एवरीडे एक्टिविटीज़ को सेक्रेड जैसे ट्रीट करना है। ट्रांसफॉर्म करिए, एवरीडे एक्टिविटी को सेक्रेड समझिए। व्हेन वी से द राइट्स आर स्पीकिंग मियरली ऑफ जेड एंड सिल्क, ही आस्क्स रेटोरिकली। तो वो बुक में से कोट करता है एनालिटिक्स में से कन्फ्यूशियस को, कि जब हम बोलते हैं राइट्स यानी कस्टम्स यानी ट्रेडिशन, तो आर बी स्पीकिंग मियरली ऑफ जेड एंड सिल्क, तो क्या हम जेड एंड सिल्क जैसे सब्सटेंसेस की बात करते हैं जिनको आप रिचुअल्स में यूज़ करते हैं? ही आस्क्स रेटोरिकली। तो वो पूछता है, और रेटोरिकली क्यों पूछता है? क्योंकि इसका आंसर ना है। तो आगे लिखा भी है द आंसर इज नो। Confucian ritual goes beyond formalized activities that require the proper use of jade and silk. तो Confucius का जो ritual है वो formal activities के beyond जाता है, और वो कहता है कि jade and silk को properly use करो। Ritual is or can be part of all human activity. कुछ भी आप करते हैं तो वो एक प्रथा जैसा ही है। It governs greetings and आप सामने वाले को कैसे greet करते हो, आप कॉन्वर्सेशन कैसे चलता है आपका, कॉन्वर्सेशन कैसे चलता है आपका, ये सारी चीज़ें भी किस पे निर्भर करती हैं? रिचुअल पे निर्भर करती हैं। इट इज़ हाउ यू हार्मोनाइज योर लाइफ विद द रिदम्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बेसिकली हर चीज़ एक रिचुअल है। ये आपको बेहतर समझ आएगा जब अभी हम आगे पढ़ेंगे। इफ़ यू टेक रिचुअल सीरियसली, सबमिट टू इट एंड प्रैक्टिस इट, देन ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ फॉर द बेटर विल गो फ्रॉम डिफिकल्ट टू एफर्टलेस। कहता है कि अगर आप रिचुअल को सीरियसली लेते हो, सबमिट कर देते हो अपने आप को उसके आगे, सरेंडर करते हो, उसको प्रैक्टिस करते हो, तो जीवन डिफिकल्ट से एफर्टलेस हो जाएगा। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स आई ट्रांसफॉर्म विद कन्फ्यूशियन रिचुअल was my relationship to my phone. So here is something very important for people who keep saying that there are a lot of distractions on the way to CAT. तो ऑथर कहता है कि मैंने कन्फ्यूशियन रिचुअल से यूज़ करके सबसे पहले अपना फ़ोन के साथ अपना रिश्ता बदला। लाइक सो मैनी ऑफ अस, आई वॉज कॉन्स्टेंटली टेम्प्टेड टू चेक इट। तो हमारी आदत होती है हर 2 मिनट में फ़ोन उठा के चेक करने की। While driving, bored by a story my 9-year-old daughter was telling out on a hike anywhere. तो वो हर जगह फ़ोन निकाल लेता था। बेटी कोई स्टोरी सुना रही है, 9 साल की बेटी, फ़ोन निकाल लेगा, बोर हो रहा है, हाइकिंग पे गया है, फ़ोन निकाल लेगा, कहीं पर भी है फ़ोन निकालेगा। आई न्यू आई शुडंट, मुझे पता था कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी यही करता था।
और रिजल्ट्स क्या होते थे? टेरेबल होते थे। अ नियर मिस ऑफ अ पेडेस्ट्रियन, ड्राइविंग के टाइम पे फ़ोन उठाएंगे तो शायद हो सकता है कोई ठुकते ठुकते बच जाए, तो नियर मिस हो जाता था पेडेस्ट्रियन के साथ। एक ऐसी डॉटर जिसको दिखता था मेरा बाप मुझ पर अटेंशन ही नहीं दे रहा है, और अल्टीमेटली मेरी जो हाइक थी वो भी लाउजी थी, क्योंकि मैंने हाइक को कहाँ इन्जॉय करा, मैं तो फ़ोन पे लगा हुआ था। एंड गेट इन सर्टन कॉन्टेक्स्ट कीपिंग माई फोन वेयर इट बिलोंग वॉज ईजी, और उसके बावजूद फ़ोन को वहाँ रखना जहाँ पे वो था वो ईजी था। आई हैव नेवर टेकन इट आउट वाइल टीचिंग अ क्लास एंड स्क्रॉल थ्रू ट्विटर। कहता है कि मैं टीचर हूँ और मैं पढ़ाता हूँ, और जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं कभी भी फ़ोन नहीं निकालता, मैं कभी भी ट्विटर नहीं चेक करता क्लास में बैठ के। लेकिन हाइकिंग के टाइम पे बेटी से बात करते वक्त, ड्राइविंग के वक्त फ़ोन निकल आता है। तो कुछ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में फ़ोन को दूर रखना आसान था, लेकिन कुछ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में डिफ़िकल्ट था। तो उसने सोचा कि ऐसा क्यों है, बिकॉज डूइंग सो इज़ रिचुअली इनअप्रोप्रिएट, एंड आई टुक दैट सीरियसली। उसको समझ आया कि प्रथा के मुताबिक, रिवाज के मुताबिक पढ़ाते वक्त फ़ोन चेक करना बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट है। सामने बच्चे बैठे हैं, वो देखेंगे, इनअप्रोप्रिएट लगेगा, तो क्योंकि वो इनअप्रोप्रिएट है तो आप वो काम करते ही नहीं हैं। बाकी जगह पर आप जहाँ पे आपको लगता है कि कोई आपको टोकने वाला नहीं है, किसी को बुरा टाइप नहीं लग रहा है, अगर लग भी रहा है तो बेटी शायद कुछ बोल ले रही है, तो आप फ़ोन यूज़ करते हैं। टू एम्ब्रेस कन्फ्यूशियन रिचुअल इज़ टू ट्रीट ऑल द कंटेक्स्ट द वे आई ट्रीट माई क्लासरूम। तो कन्फ्यूशियस रिचुअल को एम्ब्रेस करने का क्या मतलब है कि आप हर कॉन्टेक्स्ट में वैसे ही ट्रीट करें जैसे मैं अपने क्लासरूम को ट्रीट करता हूँ। तो अपने क्लासरूम को कैसे ट्रीट करता है? एज अ सेक्रेड स्पेस विद इट्स ओन रिदम्स एंड पैटर्न्स। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं पूरी तरह पढ़ाता हूँ, वो मेरे लिए एक सेक्रेड स्पेस है। मेरा क्लासरूम, उसकी रिदम, उसका पैटर्न, पढ़ाई पर ध्यान, स्टूडेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन, वही सब कुछ है। ड्राइविंग अ कार इज़ नॉट अ टाइम टू चेक माई फ़ोन। तो जिस तरह पढ़ाते वक्त हम नहीं देखते हैं कि हमारे को जब जिस तरह पढ़ाते वक्त वो फ़ोन नहीं देख रहा है, उसी तरीके से ड्राइविंग करते वक्त भी फ़ोन चेक करने का टाइम नहीं है। लाइकवाइज फॉर टॉकिंग विद माई डॉटर एंड फॉर हाइकिंग। और इसी तरीके से बेटी से बात करते वक्त भी फ़ोन चेक नहीं करना चाहिए, और हाइक करते वक्त भी फ़ोन नहीं चेक करना चाहिए। लेकिन आप इसको सीरियसली लेते हैं, इसको सीरियसली नहीं लेते। तो कहता है कि इसको भी सीरियसली लेना पड़ेगा। हर कॉन्टेक्स्ट में उसको सेक्रेड स्पेस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा कि मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ। As soon as I began treating those contexts with the respect they deserved, तो with the reverence मतलब with the respect they deserve, कि बेटी बात कर रही है तो उसको रिस्पेक्ट देनी है, फ़ोन नहीं यूज़ करना। हाइक पे आया हूँ तो हाइक एंजॉय करनी है, उसको रिस्पेक्ट देनी है। ड्राइव कर रहा हूँ तो ड्राइविंग को रिस्पेक्ट देनी है। किसी चीज़ को कहीं पे हमको परेशान नहीं होना। इज़ देयर अ लैग? आई विल स्विच ऑफ माई वाईफाई। इज़ देयर अ लैग? इज़ एवरीबडी ओके विद इट? Please let me know. I've removed my phone from Wi-Fi. Maybe it helps. One device goes down. Okay. No lag? Thank you. So then वो बोलता है कि हम इसको भी ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं। Confucius cared deeply about the practical application of his teachings. To learn and then have occasion to practice what you've learned. Is this not satisfying? तो Confucius कहता था कि सीखना, और सीखने के बाद उसको ओकेजन्स पे प्रैक्टिस करना जो आपने सीखा है, क्या ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है? वो पहली ही लाइन में पूछता है एनालिटिक्स में। और ली का पहला टेस्ट, रिचुअल का पहला टेस्ट क्या है कि ये काम करता है ज़िंदगी में या नहीं करता है। तो ऑथर कहता है इट हैज़ पास्ड माई टेस्ट। तो मेरे को लगता है कि ये काम करता है। आई थिंक दैट्स बिकॉज मोर देन 2 millennia ago कन्फ्यूशियस डिस्कवर्ड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स लाइक दैट अनलाइक हिज टेस्ट इन म्यूजिक स्टिल अप्लाई टुडे। तो कन्फ्यूशियस ने 2500 साल पहले जो म्यूज़िक सुनने को बोला वो अभी रेलिवेंट नहीं है, लेकिन उसके जो प्रिंसिपल्स थे वो आज भी रेलिवेंट है, वो आज भी काम करते हैं। ऑथर कहता है विल सबमिटिंग टू रिचुअल वर्क फॉर यू? द कन्फ्यूशियन वे टू फाइंड आउट इज बाय लर्निंग एंड देन हैविंग ओकेजन टू प्रैक्टिस। कहता है कि देखो, सीखो कि रिचुअल के साथ कैसे अप्लाई करना है, फिर उसे अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो, और फिर मुझे बताओ काम करता है नहीं। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन ट्राई दिस आउट। द एनालिटिक्स डिस्क्राइब्स मेनी प्रैक्टिसेस that fit a generic understanding of ritual like proper mourning and how to respect guests। कहता है कि देखो, एनालिटिक्स बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में हमको रिचुअल पता है कैसे काम करता है। जैसे मातम करते वक्त हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कोई मर जाता है तो क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, रोना चाहिए कि हंसना चाहिए, क्या लेके जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, ये पूरा रिचुअल है ना। गेस्ट्स के साथ कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, इसका पूरा एक रिचुअल है। गाइडेंस बड़ी स्पेसिफिक है। तो गाइडेंस बहुत स्पेसिफिक कैसे है कि जब हम विलेज ड्रिंकिंग सेरेमनी अटेंड करते हैं तो कन्फ्यूशियस सिर्फ तभी निकलता था जबकि बड़े लोग जा चुके थे। तो हम अपने से बड़ों को पहले जाने देते हैं, हम अपने से बड़ों को बैठने की जगह देते हैं, ये रिचुअल का पार्ट है। या हमसे कोई कमज़ोर है तो हम उसको महत्व देते हैं। तो जो रिचुअल का पार्ट है उसको फॉलो करते हैं। अदर पैसेजेस डिस्क्राइब अ मोर एक्सपांसिव वर्जन ऑफ रिचुअल। एनालिटिक्स के बाकी पैसेजेस में और एक्सपांसिव यानी बड़ा
वर्जन है रिचुअल का कि डू नॉट लुक unless it is in accordance with ritual, do not listen unless it is in accordance with ritual, do not speak unless it is in accordance with ritual, and do not move unless it is in accordance with ritual. वो कहता है कि देखना, सुनना, कहना और यहाँ तक कि अपनी जगह से हिलना तब तक नहीं होना चाहिए जब तक रिचुअल के हिसाब से अप्रोप्रिएट है या नहीं. कई बार कुछ चीज़ों को देखना अप्रोप्रिएट नहीं होता है तो उसे मत देखिए. कुछ चीज़ों को कहना अप्रोप्रिएट नहीं होता है तो उसे मत कहिए. और कभी कभी ज़बरदस्ती मूव अराउंड करना भी अप्रोप्रिएट नहीं होता तो मत चलिए. वॉट माइट सीम लाइक रेसिपी फॉर न्यूरोटिसिज्म, आपको लगेगा कि ये क्या पागलपन है, बोले चले जा रहा है, आप न्यूरोटिक फील करेंगे, इज इन फैक्ट अ रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट अबाउट द ऑल एनकम्पासिंग रेंज ऑफ रिचुअल. अगर आप इसे प्रैक्टिस करें तो ये काफ़ी क्रांतिकारी है, काफ़ी रेवोल्यूशनरी है. कंसिडर प्रॉपर टाइमिंग एसेंशियल फॉर स्टैंडर्ड रिचुअल्स. तो प्रॉपर टाइमिंग का कितना इंपॉर्टेंट है. आप चर्च में गाना कब शुरू करते हैं, सिर्फ सही टाइम पर ना. ये थोड़ी कि फादर बात कर रहे हैं और आप बीच में शुरू हो गए, होली फादर दाउ आर्ट इन हेवन. गाने का समय आता है तब सब एक साथ गाते हैं, राइट. तो टाइमिंग एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है. इसी तरीके से वहाँ बोलना जहाँ नहीं बोलना चाहिए तो उसको हम कहते हैं ना ये बंदा रैश है, बीच में बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोल रहा है, बड़ों के सामने बोल रहा है. वी कम अप विद ऑल ऑफ दैट. टू नॉट स्पीक व्हेन इट इज़ टाइम टू स्पीक, इट इज़ कॉल्ड मी सीक्रेटिव. और जहाँ बोलना चाहिए वहाँ आप चुप रहते हैं तो लोग कहेंगे कि अरे बड़ा सीक्रेटिव है, या फिर इंट्रोवर्ट है, या फिर घमंडी है, बात ही नहीं करता. समटाइम्स यू रश टू से समथिंग इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर योर फ्रेंड टू फिनिश. कभी कभी हम अपने दोस्त की बात आधे में काट कर हमें जो कहना है वो कहने लगते हैं. हमारी क्लासेस इसका लाइव एग्जाम्पल है. हम सोचते ही नहीं है कि टीचर क्या बोल रहा है, हम अपनी अपनी बोलते जाते हैं. यू हैवंट ट्रीटेड द रिदम ऑफ द कॉन्वर्सेशन एज सीक्रेट. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने अपनी कॉन्वर्सेशन को वो रिस्पेक्ट नहीं दी है जो आपको देनी चाहिए. आपने उसे सीक्रेट नहीं माना, आपने वायलेट करा रिचुअल को. और होता क्या है, दोस्त इरिटेट हो जाता है क्योंकि तुमने उसे इंटरप्ट करा था. क्लास में तो हम इरिटेट होते ही हैं, आपको पता ही है. रिदम और पैटर्न सब जगह है और इसीलिए ये पॉसिबिलिटी कि आप उनको हार्मोनाइज करके चलें ये भी सब जगह है. इन अ रिमार्केबल पैसेज कन्फ्यूशंस एंड हिज डिसाइपल्स स्टार्टल अ फेजेंट which takes flight and then alights in a tree. How timely it is, how timely it is, he cries. तो एक बड़ा सिंपल सा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है जो कि सुनने में बड़ा मंडेन और बोरिंग लगता है कि कन्फ्यूशियस और उसके डिसाइपल्स एक फेजेंट को स्टार्टल कर देते हैं, शॉक कर देते हैं जब वो उड़ता है और जाकर ट्री पे बैठ जाता है. और कन्फ्यूशियस चिल्लाने लगता है, ओ हाउ टाइमली, कितना सही समय है, कितना सही समय है कि ये उड़कर कितने सही समय पे जाकर वहाँ बैठा. अब आप सोचेंगे कि ये कैसा रिस्पॉन्स है कि पक्षी उड़ा और आप कह रहे हैं कितना टाइमली है. बर्ड कैसे टाइमली हो सकती है. वाई डज दिस एनेक्डोट कंक्लूड अ चैप्टर अदरवाइज डेडिकेटेड टू जेनरिक रिचुअल्स सच एज रिसीविंग गेस्ट. तो आप कहेंगे कि ऐसा चैप्टर बुक का जो कि गेस्ट्स को कैसे रिसीव करते हैं और गाड़ी कैसे चलाते हैं के बारे में बात कर रहा था, अचानक से पक्षी के उड़ने के टाइमलीनेस के बारे में बात क्यों करता है. द पजल इज रिजॉल्व बाय रिकॉग्नाइजिंग दैट एवरीथिंग इज शॉट थ्रू विद रिदम्स. व्हाट डज हेवन एवर से, yet the four seasons go round and find their impetus there. In the world of Ecclesiastes 3, there is a time for everything, a time to be silent and a time to speak, a season for every activity under the heavens. तो Confucius कहता है कि देखो हर चीज़ का समय है. आपने कभी अगर किसी बर्ड को डराया है या छिपकली को डराया है या कॉकरोच को डराया है तो आपको पता होगा कि टाइमलीनेस कितनी इंपॉर्टेंट है. अगर वो सही समय पर रिएक्ट नहीं करते हैं तो खलास, गेम ओवर. वो सही समय पर रिएक्ट करते हैं तो टाइमलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी तरीके से शांत रहने का भी एक समय है और बोलने का भी एक समय है. और हर एक्टिविटी जो कि हेवंस के अंडर है, हर सीज़न का अपना एक समय है. आजकल चीज़ें अपने सीज़न के हिसाब से नहीं हो रही है. मई के शुरू में बारिश हो गई, फिर अभी धूप हो रही है, फिर अभी आगे बारिश बता रहे हैं. तो हम कितने आर्टिकल्स आ रहे हैं रोज़ कि वेदर डिस्टर्बेंसेज एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इन आर टू आर एडवांटेज. तो वी नो दैट देयर इज अ टाइमिंग फॉर एवरीथिंग एंड वंस दोस टाइमिंग्स आर डिसरप्टेड देन थिंग्स आर नॉट नॉर्मल. Like skillful musicians improvising harmoniously with each other, we can play along with the world. तो म्यूजिशियन अच्छा कौन सा होता है, जो अपने ग्रुप को देखकर इम्प्रोवाइज करता है. तो आप भी प्ले अलॉन्ग कर सकते हैं दुनिया के साथ अगर आप रिचुअल के हिसाब से चलें. और इस प्ले में जो आप दुनिया के साथ खेल रहे हैं, जो गेम ऑफ लाइफ है, उसमें फ्रीडम की भी जगह है. There are infinite ways to have a good conversation, infinite features of nature to focus on while hiking. तो अच्छी कॉन्वर्सेशन करने के हज़ारों तरीके, लाखों तरीके हैं. हाइकिंग के टाइम पर नेचर में फोकस करने के हज़ारों तरीके हैं. लेकिन कोई भी म्यूजिशियन आपको बताएगा कि क्रिएटिंग ब्यूटिफुल म्यूजिक ऑल्सो रिक्वायर्स सबमिटिंग टू कॉन्स्टेंट्स. म्यूज़िक क्रिएट करने में फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सही म्यूज़िक बजाने के लिए कुछ कुछ प्रथाएं भी तो हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं. आप गिटार को वायलिन की जगह और वायलिन को गिटार की जगह और तबले को ढोलक की तरह बजाएंगे तो नहीं चलेगा ना.
तो कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जिनके आगे हमें सबमिट करना पड़ता है। हार्मनी कोऑपरेटिव है, और कोऑपरेशन का मतलब होता है अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करना, उनके डिज़ायर्स और कंट्रीब्यूशन के पैटर्न्स को देखना और रिस्पेक्ट करना। To follow Confucian rituals means partnering with the world in the sacred activity of living. I think you should concentrate on this slide because we have 2 questions for you. To follow Confucian ritual means partnering with the world in the sacred activity of living. कितना beautiful line है। Confucian ritual का मतलब है दुनिया के साथ जीने की sacred activity को लेकर पार्टनरशिप कर लेना। Living life is a sacred activity. जीवन जीना अपने आप में एक पाक, एक ऊंचा, एक पवित्र एक्टिविटी है, काम है। उसमें आपको पार्टनर करना है दुनिया के साथ, एंड दैट मीन्स टेकिंग कॉन्स्टेंट सीरियसली। और वहाँ पे आपको कॉन्स्टेंट्स यानी मजबूरियाँ, रूल्स, रेगुलेशंस, रिचुअल्स को सीरियसली लेना चाहिए, इंस्टेड ऑफ रिजेंटिंग देम और इग्नोरिंग देम, बजाय उनको नफरत करने के या इग्नोर करने के। एंड डूइंग सो इज़ जॉयफुल नॉट बर्डनसम। ऐसा आप करने लगेंगे, रिवाज के हिसाब से चलेंगे तो ये बर्डनसम नहीं है, ये जॉयफुल है। वैसा ही जैसा कि फेलो म्यूजिशियंस ट्राई करते हैं, इज़ बेटर दैन ट्राइंग टू प्ले ओवर देम। तो फेलो म्यूजिशियंस के साथ प्ले करना ज़्यादा मज़ेदार है या उनको ओवरटेक करके कुछ और बजा देना ज़्यादा जॉयफुल है? तो ऑब्वियसली उनके साथ मिलकर बजाने में ज़्यादा मज़ा है। प्रैक्टिस इनफ एंड प्रॉपर रिचुअल कम्स ऑटोमेटिकली। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। हारमनी एफर्टलेस है। When it comes to the practice of ritual, it is harmonious ease which is known as hey that is to be valued. तो ये जो हारमनी आपको मिलती है ना, जब आप रियलाइज़ करने लग जाएंगे कि यार ये टाइम नहीं है फ़ोन यूज़ करने का, या ये टाइम नहीं है मुंह खोलने का, या ये टाइम नहीं है उठ के चले जाने का, ये सही नहीं लगता, ये सही नहीं है। तो जब आप हारमनी में साथ रहेंगे और उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और सबमिट कर लेंगे तो आप उसे वैल्यू कर पाएंगे। रिचुअल फिर एफर्टलेस एक्शन बन जाएगा, जिसका चाइनीज़ टर्म है वू वे, और धीरे धीरे रिचुअल हैबिट बन जाएंगे, आदत हो जाएगी। गुड हैबिट्स एंड बैड वंस आर एफर्टलेस। हैबिट एफर्टलेस होती है, हैबिट में कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता, हैबिट अपने आप हो जाती है ऑटोमेटिक। रिफ्लेक्सिव एक्शंस कल्टिवेटेड थ्रू रेपिटेशन, और जो रिफ्लेक्सिव एक्शंस रहते हैं वो रेपिटेशन के थ्रू आप कल्टिवेट करते हैं। बट देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम विद दिस एनालॉजी। व्हाट? हैबिट्स आर डिफिकल्ट टू चेंज एंड दे आर इनफ्लेक्सिबल. If you are in the habit of, say, greeting people by shaking their hand, then not shaking hands during COVID-19 might take initially effort. You must change the habit. तो हैबिट बन जाता है रिचुअल, ये अच्छी बात है, लेकिन हैबिट बदलने में दिक्कत आती है। तो आपको लोगों से हाथ मिलने, गले मिलाने की आदत थी, लेकिन अचानक से कोविड आ गया तो आपको आपकी हैबिट बदलनी पड़ी, आपको दूर से नमस्ते करने की या हाय हेलो बोलने की आदत डालनी पड़ी। तो हैबिट को चेंज करना भी आना चाहिए। इन दिस सेंस रिचुअल इज़ मोर लाइक इम्प्रोवाइज्ड म्यूजिक। तो उस सेंस में म्यूजिक इम्प्रोवाइज म्यूजिक की तरह रिचुअल है, या फिर एथलेटिक परफॉर्मेंस की वजह की तरह है। जिससे जैज़ के जो सोलोइस्ट होते हैं वो रिजिड तरीके से गाना नहीं बजाते हैं, वो एडजस्ट करते हैं अपने बैंडमेट्स के हिसाब से और शाम के मूड के हिसाब से। अगर आपने एमिली इन पेरिस देखा है तो उसकी दोस्त जैज़ प्लेयर सिंगर रहती है, तो आपने देखा होगा शी परफॉर्म्स एज पर द इवनिंग, and it's not the same every time. She is not performing out of habit. There is a lot of flexibility. That's exactly what's written here. The same is true of good athletes who adjust to different opponents and conditions. अच्छा एथलीट कौन होता है? जो अलग अलग opponents के हिसाब से, अलग अलग conditions के हिसाब से खुद को change करना जानता है। Playing exactly the same way according to habit will be equivalent of greeting every person you meet from strangers to your spouse in exactly the same way. अगर आप flexible नहीं हैं, अगर आप changes नहीं लाते हैं, आप सबके साथ एक जैसा ही खेलते हैं, तो फिर आप अपने स्पाउस से मिलते हो, स्ट्रेंजर से मिलते हो, तो सबसे हाथ ही मिलाते हो क्या? तो सबसे तो हाथ नहीं मिलाओगे ना, किसी से गले भी मिलोगे, किसी को किस करोगे, किसी का हाथ चूमोगे, किसी का माथा चूमोगे, किसी को नमस्ते करोगे, किसी को देखकर मुस्कुराओगे और किसी की तरफ देखोगे भी नहीं। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है, जैसे के साथ तैसा होना पड़ता है। तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। हैबिट का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम अड़ जाइएगा किसी बात पर। कन्फ्यूशियन रिचुअल इज सिमिलरली फ्लेक्सिबल, इट डिपेंड्स ऑन अवेयरनेस। तो फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आएगी? अवेयरनेस से। किसके? रेलिवेंट फैक्टर्स के। समवन हु सबमिट्स टू रिचुअल डज नॉट शेक हैंड्स आउट ऑफ हैबिट। जिसने खुद को रिचुअल के हवाले करा है वो सिर्फ इसीलिए हाथ नहीं मिलाता क्योंकि उसको आदत है। शी शेक्स हैंड्स बिकॉज इन दैट कॉन्टेक्स्ट शेकिंग हैंड्स इज द प्रॉपर थिंग टू डू। तो वो इसीलिए हाथ नहीं मिला रहा क्योंकि हाथ मिलाने की आदत है, इसीलिए हाथ मिला रहा है क्योंकि उस समय हाथ मिलाना ही सही तरीका है ग्रीट करने का। व्हेन अ पैंडेमिक हिट्स, शेकिंग हैंड्स में नो लॉन्गर बी द राइट वे टू ग्रीट समवन। जब पैंडेमिक आता है तो शेक करना हैंड्स प्रॉपर तरीका नहीं है। अगर एक्शंस हैबिचुएटेड हैं तो फिर उनको चेंज करने में आपको एफर्ट लगेगा, लेकिन अगर एक्शंस रिचुअल का फंक्शन है
तो यू कैन शिफ्ट अवे फ्रॉम हैंड शेकिंग एंड एडजस्ट योर ग्रीटिंग स्टाइल टू द रेलिवेंट फैक्टर्स ऑफ द न्यू कॉन्टेक्स्ट। तो रिचुअल में हैबिट का काम नहीं है, रिचुअल कॉन्टेक्स्ट और फैक्टर्स को कंसिडर करके अवेयरनेस रख के अपने सराउंडिंग्स की खुद को चेंज करने का नाम भी है। अगर यू आर अ मास्टर ऑफ रिचुअल, एडजस्टमेंट कम्स एफर्टलेसली लाइक एन एथलीट और म्यूजिशियन हु इज इन द जोन। तो कभी कभी हम क्लास में ज़्यादा बात करते हैं, कभी कभी हम कम बात करते हैं, कभी कभी हम बिल्कुल बात नहीं करते, कभी बातों में ही क्लास कट जाती है, कभी ज़्यादा मोटिवेशन कभी कम, कभी ज़्यादा ह्यूमर कभी कम, कभी ज़्यादा पढ़ाई कभी कम, कभी ज़्यादा प्रैक्टिस मोर थ्योरी, लेस प्रैक्टिस थ्योरी मोर प्रैक्टिस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम चेंज कर रहे हैं खुद को, अवेयरनेस रख रहे हैं अपने सराउंडिंग्स की, और उस जोन में घुसकर उस जोन के लिए जो अप्रोप्रिएट है वो कर रहे हैं। We already make these effortless adjustments in traditional ritual contexts. If you are in the habit of wearing shoes in your place of worship, it takes no effort to remove them during a visit to a Buddhist temple. अगर आपको आदत है जूते पहनने की, आप चर्च जाते हैं, वहाँ पे जूते पहन के लोग चले जाते हैं, तो फिर कोई एफर्ट नहीं लगना चाहिए बुद्धिस्ट टेम्पल में जूते उतारने के लिए। इसलिए नहीं क्योंकि आपको जूते पहनने की आदत है तो आपको जूते उतारने में दिक्कत है, बल्कि क्योंकि वो प्रॉपर थिंग है टू डू। तो अपने घर में शायद आप जूते पहन के घुसते हैं, लेकिन दूसरे के घर में जूते उतार के घुसते हैं क्योंकि उसने लिखा हुआ है अपने दरवाजे के बाहर के जूते बाहर रखो, तो वो प्रॉपर थिंग टू डू है, ईजी है। इसलिए ईजी नहीं है क्योंकि तुमने आउटसोर्स कर दिया है अपनी विलिंगनेस को, हैबिट को, बल्कि तुमको उस रिचुअल का इंपॉर्टेंस पता है कि बुद्धिस्ट टेम्पल में जूते उतार कर ही जाया जाता है, तब भी जबकि तुम्हें आदत है जूते पहन के जाने की। तो कन्फ्यूशियन रिचुअल कहता है कि दुनिया ही तुम्हारा टेम्पल है ना बाबा, तो जहाँ पर जूते उतारने का वक्त है तो जूते उतारो, और जहाँ पहनने का वक्त है वहाँ पहनो। तो जो सही चीज़ है अवेयरनेस के साथ उसे करना चाहिए। इनफैक्ट एम्ब्रेसिंग कन्फ्यूशियन रिचुअल हैज़ हेल्प मी ब्रेक ऑल काइंड्स ऑफ बैड हैबिट्स लाइक प्लकिंग माई बियर्ड नर्वसली और टॉसिंग क्लोथ्स ऑन द बेड इंस्टेड ऑफ हैंगिंग देम अप। ये तो मैं करता ही नहीं अब मैं बैठ के अपनी बियर्ड नहीं चुनता हूँ, या मैं अपने कपड़ों को यूँ ही पलंग पे नहीं पटक देता हूँ। सारी बैड हैबिट्स मेरी छूट गई हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया कुछ पैटर्न्स के हिसाब से चलती है और मुझे उन पैटर्न्स को सीक्रेट तरीके से ट्रीट करना चाहिए। तो हमको पता है ना कि हम खाना बैठ के खाते हैं, या फिर हम हाथ धो के खाना खाते हैं, या हम खाना खा के हाथ धोते हैं, या हम खाना खाने से पहले प्रे करते हैं। आप हर चीज़ को अगर सीक्रेट ट्रीट करोगे, आप उन पैटर्न्स को फॉलो करोगे, तो फिर आप देखोगे कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो द वर्ल्ड इज़ योर टेम्पल, ओके। बियर्ड प्लग करने के लिए नहीं है, बेड कपड़े रखने की जगह नहीं है। ये पैटर्न तोड़ना वैसा ही बुरा है जैसे कि अगर आप मंदिर में जूते पहन के घुस जाएं। तो ऑल टॉक ऑफ दिस पैटर्न्स रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सम केसेस क्लोथ्स ऑन द बेड, टेक्सटिंग व्हाइल ड्राइविंग, द पैटर्न इज क्लियर, बट व्हाट इफ द पैटर्न इज नॉट क्लियर? What if you see yourself floundering, which means failing, the musicians around you playing a melody you have never heard? तो अगर कुछ ऐसा हो जहाँ का पैटर्न आपको ना पता हो, तो आपको नहीं पता फॉर एग्जाम्पल कि कहाँ जूते पहनने और कहाँ उतारने हैं, या कहाँ ड्राइव पे टेक्स्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। कुछ जगह तो पैटर्न्स फिक्स्ड हैं कि बेड पे क्लोथ्स नहीं रखे जाते, ड्राइविंग के टाइम टेक्सटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ कुछ जगह पे नहीं पता होता, तो क्या करना चाहिए? तो कन्फ्यूशियस के पास सोल्यूशन है। कन्फ्यूशियस कहता है पढ़ाई करो। एनालिटिक्स के थ्रू कन्फ्यूशियस कहता है कि पढ़ने का बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस है। मैं हमेशा से सोचता था, ऑथर कहता है कि कन्फ्यूशियन रिचुअल कुछ नहीं है, माइंडलेस ओबीडियंस है, कि भैया जो प्रथा है उसको फॉलो करने का और माइंडलेसली बस ओबीडियंट बन जाने का, जो क्लासिक्स ने बोला वो करने का। लेकिन कन्फ्यूशियस ये नहीं सिखाता है। रिचुअल गवर्न्स बिहेवियर इन ऑल कॉन्टेक्स्ट। स्टडिंग क्लासिक्स इज यूनिकली हेल्पफुल इन 2 की वेज। क्लासिक्स को स्टडी करना 2 तरीके से हेल्पफुल है। पहला, क्लासिक्स में टाइम टेस्टेड लाइफ विजडम होती है, जो नॉन वर्चुओसोज मेरे जैसे जिनके लिए लेबोरियस ट्रायल एंड एरर जिनको करना पड़ेगा, उनको मदद मिल जाती है वो क्लासिक्स पढ़ के। कॉमन नॉर्म्स मिलते हैं आपको जब आप उन्हें स्टडी करते हैं। दूसरा, जब आपने स्टडी नहीं करी है क्लासिक्स की कभी भी, तो आपको वो डायनेमिक समझने में दिक्कत होगी जो कि लैंग्वेज से लेके सोशल इंटरेक्शन तक हर जगह मौजूद है। Notably, Confucius doesn't require rigid adherence to the norms described in the classics. Sticking rigidly to a specific ritual is not ritual, it is habit. तो वो कहता है हैबिट मत बनाओ, रिचुअल को समझो और रिजिडली मत उसको फॉलो करो। Studying broadly helps us harmonize with whatever style of music we happen to encounter. तो जब हम ब्रॉडली पढ़ते हैं, हमको जब स्टडी का इम्पोर्टेंस पता चलता है, जब हम स्टडी करते हैं, तो जो भी म्यूज़िक का स्टाइल हो हम उसके साथ हार्मोनाइज हो जाते हैं। इफ़ यू नो दैट इन इंडिया नॉड्स एंड हेड शेक्स मीन समथिंग डिफरेंट दैट इन मोस्ट अदर कंट्रीज, यू वॉन्ट बी नीडलेसली ऑफेंडेड द फर्स्ट टाइम यू आर सरप्राइज बाय अ विगरस हेड शेक। तो अगर आपको पता हो कि इंडिया में नॉड का, सिर हिलाने का, ऐसे या ऐसे, तो हम लोग हाँ और ना में ऐसे करते हैं, या फिर इसमें भी हम सिर हिलाते हैं,
या फिर हम खुशी में भी सिर हिलाते हैं। अगर आपको पता हो कि हमारे नॉड्स और हेड शेक्स का दुनिया के बाकी की जगह पे नॉड्स और हेड शेक्स से डिफरेंट मीनिंग है। हम तो बुलाने के लिए भी नॉट करते हैं, इधर आओ के लिए भी नॉट करते हैं। तो फिर आप ऑफेंड नहीं होंगे तब जब कोई विगरसली आपके सामने हेड शेक कर रहा है। तो हो सकता है ये आपको बाकी जगह पे ऑफेंसिव लगता हो, लेकिन इंडिया में ये ऑफेंसिव नहीं है। इंडिया में हाँ ना कहने का, बुलाने का, पुचकारने का तरीका भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने इंडियन रिचुअल को समझा, इसीलिए आपको दिक्कत नहीं हो रही है। तो सारा खेल फिर घूम फिर कर किसी बात का, अवेयरनेस का और समझने का। वाइल क्लासिक्स आर वेरी यूजफुल, दे आर फार फ्रॉम द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो क्लासिक्स बड़े यूजफुल हैं, लेकिन ये सिर्फ अकेली बात नहीं है पढ़ने के लिए। कन्फ्यूशियस कॉन्स्टेंटली सॉर्ट आउट, सॉर्ट इज द पास्ट टेंस ऑफ सीक, इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू कंटेक्स्ट। तो कहते हैं नए नए कंटेक्स्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करो। ऐसा नहीं है कि बस क्लासिक्स पढ़ लिए और डन हो गया। क्लासिक बुक्स पढ़ने से सिर्फ कुछ नहीं होता। एक टेम्पल विजिट करा आपने, हर उस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछता था वो जो कि वहाँ पे हो रही है, कि हाथ क्यों धो रहे हैं, पैर क्यों धो रहे हैं, सिर क्यों ढका है। तो आपको पता होगा कि आप चर्च में बिना सिर ढके जा सकते हैं, जूते पहन के जा सकते हैं। आप गुरुद्वारे में जूते पहन के दिखाइए, आप गुरुद्वारे में बिना सर ढके जाके दिखाइए, आप मंदिर में भी बिना सर ढके जा सकते हैं। आधे लोग ढकते हैं, आधे लोग नहीं ढकते हैं। आप बिना हाथ पैर धोए नमाज पढ़ के दिखाइए, बिना वजू करे नमाज पढ़ के दिखाइए। हर जगह का अपना रिचुअल है। तो आपको ये कैसे पता चला? क्योंकि आपने उन चीज़ों को स्टडी किया, आपने उन जगहों पे जाकर क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो कन्फ्यूशियस जब टेम्पल जाता था तो वो बहुत क्वेश्चन पूछता था कि ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो जब उसको एक बंदे ने देखा तो उसकी हंसी उड़ाई कि कौन कहता है कि दैट दिस सन ऑफ अ मैन फ्रॉम ज़ू अंडरस्टैंड्स रिचुअल। ये आदमी जो दुनिया को पढ़ाता है, कन्फ्यूशियस, अपने आप को इतना महान संत बनता है, जिसको तो कुछ नहीं आता, इसको ये नहीं पता कि टेम्पल में कौन सी चीज़ क्यों होती है। जब वो ग्रेट एंसेस्ट्रल टेम्पल पे गया तो उसको हर चीज़ के बारे में वो क्वेश्चन ही पूछ रहा था, उसको कुछ नहीं आता था। कन्फ्यूशियस ने रिप्लाई दिया, आस्किंग इज़ इन फैक्ट पार्ट ऑफ रिचुअल। कहता है कि अरे आप मुझ पर हंसी उड़ा रहे हैं, मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं रिचुअल सिखाता हूँ और मुझे ही रिचुअल नहीं पता। ये तो जान लीजिए जनाब कि आस्किंग रिचुअल का हिस्सा है। जब तक जानेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक अपनाने का फ़ायदा क्या, तब तक समझेंगे कैसे। तो इसीलिए आस्किंग का जो पार्ट है, इंक्विजिटिवनेस जो है, वो रिचुअल का ही पार्ट है। नॉट ओनली does this response underscore or support the broad scope of Confucian ritual, it also shows how ritual is different from habit. Habits में कोई questions नहीं होते। मुझे खिड़की पे बैठने की आदत है कार में, मुझे आयल सीट पे बैठने की आदत है चर्च में, मुझे क्लास में बदतमीजी से बात करने की आदत है। कोई क्वेश्चन थोड़ी, मैं क्वेश्चन थोड़ी पूछ रही हूँ अपने आप से, लेकिन रिचुअल फॉलो करते वक्त हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो रिचुअल्स और हैबिट्स में ये अंतर है कि रिचुअल्स में क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, आस्किंग रिचुअल का पार्ट है। सीखिए, जानिए, पूछिए, समझिए। लेकिन हैबिट में कोई क्वेश्चंस नहीं होते। हैबिट तो हैबिट है, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। स्मोकिंग इज अ हैबिट, हु क्वेश्चंस, पीपल हु क्वेश्चन डोंट बिकम स्मोकर्स एट ऑल। ऑल्दो स्टडी इज इंपॉर्टेंट टू कन्फ्यूशियस, इट इज सेकेंडरी टू कल्टिवेटिंग वर्चू। अब स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कन्फ्यूशियस कहता है कि ये सेकेंडरी बात है। प्राइमरी बात है कि वर्चू को कल्टिवेट करो, अच्छाई को कल्टिवेट करो। एक वर्चुअस पर्सन बिना बुक लर्निंग के भी वो क्वालिटीज़ पजेस करता है जो कि वो लर्निड कहलाने लायक बन जाए। ऐसे लोग हैं जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी, ठीक है, पढ़ इल्म किताबा नू, कुछ नहीं आया। तो कुछ नहीं आया लेकिन फिर भी बहुत कुछ आता है, क्योंकि उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी है लेकिन जीवन को जाना, देखा, समझा है, तो वो लर्निड लगते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर माइट बी पीपल हु आर वेरी वेल रेड बट आर सो एरोगेंट दैट दे डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव रेड। Even more importantly, virtues like sincerity and kindness are essential to ritual. Ritual follow करने के लिए भी sincere होना और kind होना बहुत ज़रूरी है। एक आदमी जो अच्छा आदमी ही नहीं है, वो ritual follow करके क्या कीजिएगा? तो पहले अच्छे इंसान बने, फिर ritual के आगे submit करिए। In accordance with Confucian ritual, you must sincerely believe that the world is a sacred place. Like we said, the world is a temple. यू मस्ट बी जेन्युइन इन योर डिज़ायर टू हार्मोनाइज विद इट। और आपको समझना पड़ेगा कि हर काम एक सेक्रेड एक्टिविटी है और ये दुनिया एक टेम्पल है, और हर तरीके के अपने नॉर्म्स होते हैं, हर जगह के अपने नॉर्म्स होते हैं। उन नॉर्म्स को फॉलो करिए। तो पता है कि क्लास के टाइम पे फ़ोन नहीं चलाना, तो ये भी पता होना चाहिए कि ड्राइविंग के टाइम पे नहीं चलाना, तो ये भी पता होना चाहिए कि पढ़ाई के टाइम पे नहीं चलाना। फिर ये भी पता होना चाहिए कि मस्ती के टाइम पे मस्ती ही करनी चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, कि स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता, प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए। ये बेसिक बातें अगर आप याद रखेंगे और दुनिया को एक सेक्रेट जगह मानेंगे, और आप सोचेंगे जैसे टेम्पल में आप बिना हाथ मुंह धोए नहीं जाते, या नॉनवेज खा के नहीं जाते, या गंदे नहीं जाते, बिना नहाए नहीं जाते,
आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं ना क्योंकि वो रिचुअल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सेक्रेड है। लाइफ में हर चीज़ को उसी सेक्रेड तरीके से ट्रीट करेंगे, वर्ल्ड को एक टेम्पल समझेंगे तो प्रॉब्लम होएगा ही नहीं। लास्ट, माई फेवरेट एग्जाम्पल ऑफ दिस इन द एनालिटिक्स इज अ मैन नेम्ड गोंगमिंग जिया हु इज सिंगल्ड आउट फॉर एंथुसियास्टिक प्रेज बाय कन्फ्यूशियस। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जोंगमिंग जिया का एनालिटिक्स में, एक आदमी का, और ये कन्फ्यूशियस से काफ़ी प्रेज पाता है। क्यों? कुछ स्पेशल नहीं है। कन्फ्यूशियस कहता है ये वो आदमी था हु लाफ्ड व्हेन ही वाज जेन्युइनली फुल ऑफ जॉय एंड सो पीपल नेवर टायर्ड ऑफ हियरिंग हिम लाफ। जोंगमिंग जिया की तारीफ करता है कन्फ्यूशियस भर भर के, सिर्फ इसीलिए, क्यों? क्योंकि जोंगमिंग जिया सिर्फ तभी हंसता था जब जी भर के खुशी होती थी और खुशी से हंसी आती थी, फालतू में नहीं हंसता था। तो क्योंकि वो फालतू में नहीं हंसता था तो लोग उसको हंसना सुनना पसंद करते थे, उसकी हंसी जेन्युइन हुआ करती थी। अब आपको लगेगा ये काफ़ी बोरिंग और बेनल एग्जाम्पल है, बेनल इज़ वेरी ऑर्डिनरी, मतलब कौन सी ये क्या बात हुई कि अब ऐसे आदमी की तारीफ कर रहे हो जो वही हंसता है जहाँ हंसना चाहिए, तो हम क्या बेवकूफ़ हैं जो हम छोटी छोटी बातों पे हंसते हैं, हंसना बंद कर दें क्या? ऐसा नहीं है। ये बेनल एग्जाम्पल हाईलाइट करता है नेसेसरी रिलेशनशिप इन बिटवीन कैरेक्टर एंड एक्शन। यू मे नो व्हेन लाफ्टर इज अप्रोप्रिएट बट इफ़ यू फेक इट रिचुअल विल फेल। तो आपको पता होगा कि लाफ्टर कब अप्रोप्रिएट है, लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती हंसते हैं तो रिचुअल कहाँ फॉलो हुआ? हम लोगों को आदत है ज़बरदस्ती इनसिंसियरली हंसने की, कुछ नहीं समझ आता तो सामने वाले का दिल रखने के लिए हंस देते हैं। हालांकि तुम लोग अलग हो, तुम लोग पूछते हो अपने दोस्त से हंसना था क्या, आई नो दैट यू डू इट, बट देन मोस्ट पीपल लाफ इनसिंसियरली। कभी कभी फिट इन करने के लिए या सिर्फ ये दिखाने के लिए कि सब सरस है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इनसिंसियरली लाफ करते हैं। उस हैबिट को तोड़ना, उस टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना एफर्टलेस है जब आप रियलाइज करें कि फेक लाफ्टर उतना ही हराम है, सैक्रिलीजियस है, ब्लास्फेमस है, रिलीजन के खिलाफ है, रूल्स के खिलाफ है, जितना कि फ्यूनरल के दौरान हंसना। इंटेंसिटी देखिए क्या कंपेयर कर रहा है। मातम के टाइम पे हंसेंगे, कोई मर गया है तो हंसेंगे नहीं ना, तो फिर ज़बरदस्ती लिविंग रूम में बैठ के क्यों फेक लाफ्टर कर रहे हैं? ये उतना ही हराम है, उतना ही बड़ा ब्लास्फेमी है, उतना ही बड़ा सैक्रिलेज है, उतना ही बड़ा डिसरिस्पेक्ट है जितना कि आप फ्यूनरल के टाइम पे लाफ करते हैं। क्लास में फ़ोन यूज़ करना अगर ख़राब है तो ड्राइविंग के टाइम पे भी फ़ोन यूज़ करना उतना ही ख़राब है। पलंग पे कपड़े छोड़ दे रहना भी उतना ही ख़राब है। बेटे की बातों पे ध्यान न देना भी उतना ही ख़राब है। किसी के साथ बैठकर फ़ोन में लगे रहना और उस व्यक्ति पर ध्यान न देना उतना ही ख़राब है। आप इन बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। जिस दिन आप सीरियसली लेने लगेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ का सही वक्त क्या है, सही मौका क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब आप पूछेंगे हाउ डू यू नो व्हेन इट इज़ द राइट टाइम टू लाफ? When it is appropriate, yes, but only when you are feeling it. जब अंदर से हंसी आए तब हंसो। जब अप्रोप्रिएट है तब तो हंसना चाहिए ही कि किसी से मिले मुस्कुरा दिया, अप्रोप्रिएट है। लेकिन तब जब अंदर से ज़बरदस्ती अंदर से हंसी आनी नहीं चाहिए। उस रिचुअल को फॉलो करिए और लोग कभी भी आपकी लाफ्टर से थकेंगे नहीं, वैसे ही जैसे जोंगमिंग जिया की लाफ्टर से कभी भी नहीं थके थे। आई होप you've enjoyed this article. This is very different from the articles that we have done up till now, and slightly, I would say, moderate level passage. Not very easy, not very difficult, but it's a new idea. It's a unique idea, and I have two questions for you. Let's do the first question. So I hope you will remember that the world is a temple, and everyday life activity is sacred, and you will revere and respect everything as ritual, and that will help you segregate appropriate from inappropriate. I check all my mails, Sanjana. I don't reply. I hope you know that by now. I don't have the bandwidth to reply to everyone, so I choose not to reply to anyone. That's my ritual. Do you want me to go back for the first question? Let's check out what is Li, He and Wu Wei. This is a specified idea question. Specified idea question की अप्रोच क्या पड़ी है कि पीछे जाके आंसर चेक कर लेना चाहिए। एक्स्ट्रा सेकेंड्स स्पेंड कर कर हम श्योर हो सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो पीछे चलते हैं। ये रहा हे, आई विल यूज अ डिफरेंट कलर। हे इज हारमोनियस, इज
ये रहा वो वे, जिसका मतलब है रिचुअल एज एफर्टलेस एक्शन. And there was Lee, which was ritual, if I'm not wrong. Submission to Lee, typically translated to as ritual. So Lee is ritual, He is harmonious ease, and Wu Wei is ritual as effortless action. Lee is ritual, so 1A. Yeah. He is harmonious ease, so 4B. And Wu Wei is effortless action, so 2C. Therefore the answer will be. Any doubts? This is a typical IFT pattern question. Specified idea, match the column. Typical IFT pattern. ठीक है. सेकेंड वाला देखिए, मेन आइडिया क्वेश्चन. जो क्वेश्चंस पढ़ाए हैं आरसी के कोर्स में वही करवा रही हूँ. आओ सुखा दो कपड़े, बहुत लॉन्ड्री है मेरे पास. सबसे इंपॉर्टेंट, सबमिशन टू रिचुअल, फ्लेक्सिबिलिटी while प्रैक्टिसिंग रिचुअल, आस्किंग इज अ पार्ट ऑफ रिचुअल, स्टडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आगे और होता तो वर्चुअस होना भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दिस इज द आंसर. Revolutionary is not the main idea, neuroticism is not the main idea, sincerity is not the main idea. ठीक, and asking and studying is missing here. यहाँ पे studying है, asking missing है. Better than good habits is wrong. Not still traditionalism is not the main idea. Therefore the answer is D. ठीक, I hope this is clear. Are you in Delhi? I didn't even know that. So the name of the article is How to Set Yourself Free with Ritual. This is from Psyche. You're free to use code Karishma Life and get a 10% off on all your Unacademy subscriptions. Like I said, these days you are getting a 20% off. That's the offer that's going on right now. Okay. Today at 7:30 we have a para-based questions class. We'll hopefully start with para completion. I think today we have done para summary and para jumbles. So 7:30 to 9 we'll do para completion. Okay. And yeah, I have scheduled a couple of free classes on 18th and 20th, 18th May and 20th May, wherein we are practicing CR and RC. So please go and check them out on my profile. Okay. And you'll be able to solve them properly if you come to the class. Okay. Thank you so much. Have a good day ahead. Take good care of yourselves and try and submit to ritual and learn how and where to submit and to what. I hope you enjoyed the session. If yes, please press the like button. Thank you. I'll see you in the evening. Take care of yourselves.